Am I audible, guys? Yes, sir. Oh, so ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैंने शीट भेज दिया था, पर आप सबको मिल गया होगा बेटा, है ना? यस। हाँ सर। सो उरी रिएक्शंस को पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उन्हीं का डिस्कशन मैं आज करूंगा। लास्ट लेक्चर भी किया था। सो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था। मैंने सारे कंपाउंड्स का नाम सीक्वेंस में लिखा था। देन आई टोल्ड यू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोज थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आफ्टर एल्केन आई वुड लाइक टू चूज एल्कीन and benzene. Alkene and benzene. Uh, if I ask you hybridization of this carbon, sp2। sp2, इसका भी sp2, trigonal planar, this is the carbon, there is pi bond. So pi electrons, right? So what can we say? Above the plane and below the plane, we have high pi electron density. High pi electron density above and below the high pi electron density above and below the plane. If there is high pi electron density above and below the plane, then what kind of reagent will attack beta? Electron seeker or electron donor? seeker, electrophile। Yes. So electrophile will attack. And since you have here unsaturation, तो जो भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा वो क्या होना चाहेगा बेटा? सैचुरेट होना चाहेगा, यानी कि वो कुछ एलिमिनेट नहीं करेगा, वो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहेगा, वो क्या करना चाहेगा? ऐड करना चाहेगा। यानी कि रिएक्शन इज एक्चुअली एडिशन, बट व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट अटैक्स? इलेक्ट्रोफाइल। सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी कॉल्ड व्हाट? electrophilic addition। So you select reaction of alkene. Most of the time you will notice that it is electrophilic addition reaction. Is it clear? yes sir। समझ में आया बेटा? हाँ, तो पहले आप इतना कॉपी कर लो बेटा। सर हम्म, सर जो आपने रिएक्शन दिया वो क्या जेई के लिए भी सफिशिएंट है? यही के लिए? हाँ, यस सर। ये सिलेबस थोड़ी ना अलग है बेटा। केवल जो केवीपी वाई है उसमें जो लेवल होगा थोड़ा कम होगा एडवांस के कंपैरिजन। Have you all copied बेटा?
हाँ सर, डन। अब जस्ट कंपेयर एल्कीन विद बेंजीन। यहां पर क्या है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर भी अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, like this. So here also each carbon is sp2 hybridized. Each carbon is sp2. That is why ring is planar. But due to resonance, delocalization of pi electrons, so you can easily say like this: high pi electron density above and below ring. So very similar to alkene, here also there must be what? Electrophilic attack, right or wrong? Yes sir. The electrophile will attack, but the basic difference here is, if here addition occurs, if here addition occurs, then aromaticity will be lost. Benzene ring will lose aromaticity. So to preserve aromaticity, to preserve aromaticity, instead of addition, substitution occurs. Instead of addition क्या होता है बेटा? Substitution. Substitution. Substitution occurs. और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा स्पेस कम हो गया, आप मैनेज कर लेना। राइटिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ, electrophilic aromatic substitution. Copy this part also. The basic difference are both have got pi electron density above the plane and below the plane. But in one case it is addition, in another case it is substitution. Done, beta?
Okay, so most of the students are saying done. Guys, first of all, I will tell you reactions of benzene because benzene is more important. याद क्या रखना है बेटा, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा चीजें करनी है. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट you should keep in mind 5 reactions of benzene, 5 important reactions, and all 5 important reactions are electrophilic aromatic substitution. भूलना नहीं, electrophilic aromatic substitution. तो मैं इसको एक फ्लो चार्ट के वे में देता हूं. ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन जब आपका Cl2 या Br2 से होता है, ठीक है, F2 से भी हो सकता है बट उसकी रेट बहुत ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है. Cl2 और Br2, और साथ में होता है लुइस एसिड. इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड. What kind of Lewis acid? Like AlCl3 or FeCl3 or even Fe or BCl3. All these are Lewis acids. So what will happen? You just remove one hydrogen and substitute that hydrogen with halogen. जैसे Cl मान लेते हैं, है ना. आप यहाँ मान लेना कि Br भी हो सकता है. ठीक, दोनों चीजें एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है. और प्लस यहाँ पर आप लिख ले HCl या फिर HBr. क्या सब बच्चों को समझ में आया ये रिएक्शन मैं क्या बता रहा हूं इसमें? हाँ सर. इसको कहते हैं बेटा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है. इस सब का अभी थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग भी बताऊंगा, आपका इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आ गया एग्जाम में. इसके बाद HNO3. HNO3 in the presence of H2SO4. In the presence of H2SO4. Please note the difference. एक दूसरा रिएक्शन भी हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. दोनों में डिफरेंस है बेटा. इसमें HNO3 is the main reagent in the presence of H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक दूसरी चीज है. इसके बदले हम लोग यहाँ H2S2O7 भी ले सकते हैं जिसको ओलियम बोलते हैं. ठीक, दोनों में डिफरेंस है. इसमें NO2 आता है सब्स्टिट्यूशन से, दैट मीन्स यू रिमूव H एंड अटैच NO2, दैट इज नाइट्रेशन. इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन. नाइट्रेशन. और इस वाले में क्या होगा कि इस वाले में SO3 ग्रुप जो है वो कनेक्ट होता है लाइक दिस. SO3H, उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं. कंपाउंड का क्या नाम है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अच्छा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा बताइए, गेस करिए. नहीं, अच्छा, नाइट्रोबेंजीन. कंपाउंड का हाँ, नाइट्रोबेंजीन. देखो इस बच्ची के नाइट्रेशन बोलने से मैं नाइट्रेशन लिख. हाँ, नाइट्रोबेंजीन. अच्छा, इसका नाम क्या होगा बेटा? सल्फोनेशन. यस, सल्फोनेशन. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. फिर दो पॉपुलर रिएक्शंस इसकी हैं. एक में हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, और एक में हम लोग यूज करते हैं एसाइल हैलाइड. एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड. So what will happen in one case? It is acyl part that will get connected. In another case, alkyl part. तो एक केस में क्या होगा? You remove H and attach R. In another case, you remove H, attach acyl part like this. ठीक, इसको कहते हैं, दोनों एक ही उससे नाम से आए हैं. One is Friedel-Crafts alkylation. And another is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है वो. हाँ,
तो दीज आर द 5 बेसिक रिएक्शन। अब इनकी खास बात क्या है और तुम एग्जाम में इनको कैसे हैंडल कर पाओगे, डील कर पाओगे, इन सब की खास बात है कि इनका मैकेनिज्म सेम है। मैकेनिज्म क्या है बेटा, सबके लिए सेम है। सब में क्या होता है, देखो एक होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आप बोल सकते हो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब या फिर इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, जैसी भी आप स्टेटमेंट सही लगता हो आपको, दैट यू कैन से। सो देर इज वन स्टेज वेयर इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, ठीक है, आप सेंटेंस उसको अच्छे से बना लेना। दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, वो अलग अलग 5 रिएक्शंस के लिए अलग अलग है, ठीक, ये मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगा। जो एक्चुअली में होगा वो ये है कि एक बार इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल E+ मान लीजिए आ गया, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसे मान लीजिए कि वो यहां अटैक करता है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी उधर ही जाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल उधर अटैक कर रहा है, वरना इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं अटैक करेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक इंटरमीडिएट बनता है, ये अनटच्ड बॉन्ड, अनटच्ड बॉन्ड, दिस बॉन्ड यू हैव ब्रोकन, एंड यहां पर एक H लगा हुआ था, यहाँ E आ गया है अब, और यहाँ प्लस आ गया। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि ये इंटरमीडिएट कैसे बना? हाँ सर। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन की तरफ जाएंगे तो इधर वाले कार्बन को प्लस चार्ज मिलेगा, ये बड़ा सिंपल है समझना, ठीक है। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, आप मतलब मैंने बता दिया आपको कि ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप एक्चुअली है क्या, पहले स्टेप में तो एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन क्या एडिशन पॉसिबल है, क्या लूज कर देगा वो अगर एडिशन करा दिया, एरोमेटिसिटी। तो स्टेप 2 में इमीडिएट इसी इंटरमीडिएट से या किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के उससे उठा लो, कोई बेस, सिस्टम में एक बेस डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, एक बेस आएगा, वो इस H को, उस H को एस H+ लेकर जाएगा, एंड ये H अपना पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। तो ये बेसिकली रिमूवल ऑफ H हो गया, यानी कि नाउ दैट बेस, दैट H विल बी कनेक्टेड विद बेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोडक्ट है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड स्टेप, इट इज सिंपल एलिमिनेशन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि although it is electrophilic aromatic substitution, but it is a combination of what, addition dash Substitution. elimination, right to understand, substitution हो रहा है, लेकिन ये कोई एक साथ नहीं हो रहा है, it's not one step, it is happening in 2 stages। पहले ऐड हुआ फिर एलिमिनेट हुआ, ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं इनिशियल से फाइनल पे देखूं तो मुझे सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है कि एक H हट गया और एक E आ गया, बट हुआ ये 2 स्टेजेस में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन, बट ओवरऑल वी से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब अलग अलग जो केसेस होते हैं ना, जैसे पहले वाले केस में Cl+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, दूसरे वाले में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, तीसरे वाले में SO3 इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, चौथे वाले में R+ इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, एंड फिफ्थ केस RCO+ इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, समझे ना, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, जैसे Cl2 है, तो when Lewis acid like AlCl3 comes into picture, तो ये क्या करेगा, AlCl3 लुईस एसिड है ना, तो ये Cl को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ले जाएगा, और जो बच गया वो Cl+ है। क्या समझ में आया तुमको, इलेक्ट्रोफाइल देखो जनरेट हो गया। हाँ सर।
इसी तरह लगभग हर स्टेप उसमें होता है, हमें उसकी उस पे जाना नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन समझना। तो मैंने रिएक्शन सारी लिख दी आपके लिए, मैकेनिज्म भी बता दिया है, और उनमें क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू। तो ये कॉपी कर लो, एंड डेफिनेटली अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। सर इसलिए एसिड के प्रेजेंस में होता है क्योंकि बेस चाहिए होता है वहां पर, सो राइट। इसमें बेटा किसकी किसकी? एसिड के प्रेजेंस में होता है क्योंकि बेस चाहिए होता है फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, फॉर द हाइड्रोजन टू गो अवे। नहीं नहीं, एसिड की प्रेजेंस में होता है इसलिए कि बेस, ऐसा नहीं है। एसिड के लूज एसिड की प्रेजेंस में इसलिए हुआ ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाए। नो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होने के साथ बेस भी फॉर्म हो गया ना दूसरा। हाँ ये उसका एक साइड वो हो गया, फायदा हमको बेनिफिट हुआ, बट उसका मेन पर्पज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ओके ओके। तो साइड में वो बस रहेगा। हाँ, वो साइड में रहेगा जो एंड में यहाँ काम आ जाएगा। जैसे बच्चे ने बोला ना बेस चाहिए, तो बेस यहाँ वो मिल यस। गया। अगर वो ना हो तो हमको अलग से डालना पड़ता। हाँ। सर वो ओलियम लिखा है आपने SO3 वाले सेक्शन में। यस, H2SO7 ओलियम। अगर यहाँ रिएक्टिविटी लिखेंगे ना, तो जैसे एल्केन वाले में लिखा था ना F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, the reactivity order is same. We do not use F2 because it is highly, reactive. It's difficult to control the reaction. I2 is not used most of the time because the reactivity is very poor. यस सर। सर आपने जो फर्स्ट वाला लिखा है, अगर अपने अगर हमने Cl ऐड किया तो HCl ऐड करना जरूरी है या HBr भी कर सकते हैं? नहीं, हम HCl वगैरह HBr ऐड भी करें, तो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, तो Cl ऐड किया तो HCl ही निकलेगा? हाँ, Cl2 है, Cl ऐसे बोलो, Cl2 when reacts then HCl is formed, Br2 when reacts HBr is ओ formed. ओके सर। यहाँ ये साइड में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिख दी है बेटा, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक। यस सर।
I remove this? 1 सेकंड सर. Hmm. हाँ सर, डन. इसको भी कॉपी कर लूं. Should I remove this page? यस सर. Okay. Now let me tell you one thing about the reactivity. या रिएक्टिविटी से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा. जैसे मैंने बेंजीन लिया और इसमें मैंने डाल दिया CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl. तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या आंसर लिखेगा? एक नॉर्मल स्टूडेंट इस Cl को हटाएगा और वो मानकर चलेगा कि ये कार्बोकैटायन बना और उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट H हटा करके ये मिल जाएगा. क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर. लेकिन यहाँ एक फ्लॉ है. फ्लॉ ये है और उसको आप याद रखना, जब जेई के लेक्चर्स होंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूं, व्हेनेवर, याद रखना केवल कार्बोकैटायन में करना है ये चीज तुम्हें. व्हेनेवर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड as intermediate in any reaction, not only this beta, in any reaction, then it undergoes
it undergoes what? Rearrangement. It undergoes rearrangement to gain stability. आप इसको ऐसे समझो कि कार्बन जब Cl के साथ कनेक्टेड था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था और ये खुश था, ठीक। लेकिन अचानक से किसी ने उसका Cl छीन लिया, अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, ठीक। तो इनकम्प्लीट हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इसको कोई ना कोई किससे मांगेगा ये इलेक्ट्रॉन? या तो बाहर से कोई आ जाए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, या फिर इसके जो नेबर है, इसका नेबर कौन है? ये कार्बन, उस नेबर से ये रिक्वेस्ट करेगा कि अपना कुछ इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये जो नेबर है वो इसको इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो वो कह रहा है कि अगर तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो मेरा प्लस तुम्हारे पास चला जाएगा। तो उसने कहा फिर तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो पहले का वाले कार्बोकेटायन ने बताया कि तुम मुझसे ज्यादा स्टेबल। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? थोड़ा सा हाउ इज इट मोर स्टेबल बीच वाला? हाउ बट तो मैंने तुमको क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, याद है? हाँ सर, वैसा लग रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताई थी कैसे निकाली जाती है। तो उसको बॉक्स में बंद करो, उसके बगल वाले कार्बन जितने भी उसके H को अल्फा count एच। करो, तो अल्फा H कहते हैं। इसको बॉक्स में बंद करो, इसका अल्फा H बताओ कितना है? 2। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बीच वाला। हाँ। सेकेंड वन वाला। इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यानी ये अपना ये CH3 भी भेज सकता था, अपने CH3 बॉन्ड पेयर के साथ भेज सकता था, H भेज सकता था, H भेज सकता था, लेकिन किसको भेजा? सो दैट ये उससे ज्यादा स्टेबल रहे। अगर ये अपना मिथाइल भेज देता तो वो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये प्राइमरी बन जाता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यानी कि रीअरेंजमेंट हमेशा होगा अगर नेक्स्ट कार्बोकेटायन प्रीवियस कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस ये आपको माइंड में रखना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का ये प्रोडक्ट होगा, बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला कार्बोकेटायन देगा, एंड दैट विल बी दिस वन। ये मेजर है। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। इसको खास तरीके से लिख कर रखो, क्योंकि अगर ये होता एसाइलेशन, मतलब ऐसा होता, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब वो एल्काइल में होना चाहिए, याद रखना। यहां पर भी आपको लगेगा कार्बोकेटायन बन रहा है, बट वो कार्बोकेटायन एल्काइल कार्बोकेटायन नहीं है। रीअरेंजमेंट किसके अंदर होता है बेटा? एल्काइल कार्बोकेटायन। हाँ, जब भी मैं कार्बोकेटायन बोलूंगा दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एल्काइल कार्बोकेटायन। तो यहां पर नो रीअरेंजमेंट, केवल यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है बिकॉज यहां एल्काइल कार्बोकेटायन। सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो कम पढ़कर जाएंगे वो ये वाला आंसर लिख कर आएंगे, विच इज नथिंग बट अ माइनर प्रोडक्ट। योर करेक्ट आंसर फॉर द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। So, Yes, बेटा। so can you just explain it in short from that alpha H point? ये तो मैंने बेटा उसमें एक्सप्लेन किया था जब इनिशियल लेक्चर्स हो रहे थे कि हाउ कार्बोकेटायन, हाउ टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जस्ट पुट दैट कार्बोकेटायन कार्बन इन द बॉक्स एंड चेक द नेबरिंग कार्बन। Here you have two neighbor carbon atoms, and each neighbor carbon atoms here having three hydrogen atoms. Those are called alpha H. So those
cases where carbocation is having more number of alpha H, where there we say more hyperconjugation. More hyperconjugation means more stability. इससे ज्यादा अभी नहीं बता सकता, ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ. Yes, sir. Understood. Sir. Thank you, sir. Should I remove this? Have you all copied? एक सेकंड. Okay. Yes, sir. अच्छा, एक और अच्छी चीज आपको बता दूं मैं, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना बेटा, इसमें RX के बदले इन प्लेस ऑफ RX we can also use alkene और अल्कोहल, ये लिख लो. और यहाँ पर we can also use carboxylic acid और एसिड एनहाइड्राइड. स्पेस थोड़ा यहाँ कम था, लेकिन फिर भी आप ये लिख लो. मैं इसका भी एग्जांपल लेके आई विल एक्सप्लेन. Sir, carboxylic acid और acid anhydride. Yes, that is for RCOCl. इसके रिप्लेसमेंट के रूप में ये ले सकते हो. एंड इन प्लेस ऑफ RX you can use alkene और अल्कोहल. सर आपने एसिड एनहाइड्राइड के लिए कैसा सिंबल बनाया वो? कैन यू रिपीट व्हाट डिड यू से? आपने एसिड एनहाइड्राइड के लिए कैसा सिंबल बनाया, मतलब कैसा सिंबल? ये होता है बेटा एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, जिसको RCO होल ट्वाइस करके O बाहर कर दो. अच्छा, ओके. ये सब नॉमेनक्लेचर का पार्ट है. Sir, but why can they be replaced like that? Is there any reason? I'm going to take examples, don't worry. Should I remove Okay, this sir. page? चलो, अब आप देखो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. ये हो सकता है यहाँ पर जो है वो कोई दूसरा एसिड दिया हो, जैसे H3PO4. ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक. और एक मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया CH3OH. यहाँ पर भी हो सकता है H3PO4 लिखा हो, या फिर H2SO4 लिखा हो, या फिर H+ लिखा हो, या इवन कोई लूज एसिड लिखा हो, ठीक. उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन है जो कार्बोकैटायन दे सकता है. तो एल्कीन कार्बोकैटायन देता है जब उस पे H+ अटैक होगा. मान लो कि यहाँ से H+ अटैक करने इस पे आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था कि एल्कीन की रिएक्शंस क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल. क्या विजुलाइज कर पा रहे हो?
तो H प्लस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल E प्लस की तरह H प्लस होता है। तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे? तो आंसर है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके बगल में स्टेबल कार्बोकेटायन बनने। लेट मी शो यू। जब ये अटैक करने आ रहा होगा तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को या तो लेफ्ट में शिफ्ट कराएगा या राइट में शिफ्ट कराएगा। आई एम सेइंग ये राइट में शिफ्ट कराएगा और H प्लस उसी पे अटैक करेगा। रीजन कि अगर वो ऐसा करेगा तो ध्यान से देखो, यू गेट अ बेस्ट पॉसिबल इंटरमीडिएट। इससे बेटर स्टेबल कार्बोकेटायन तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर तुमने उल्टा अटैक कराया होता तो तुम्हें कार्बोकेटायन क्या मिल जाता गलती से, ये आप समझ पा रहे हो? ये लेस स्टेबल है, ये बनेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि पहला स्टेज ही था बनने के लिए। तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. एंड दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि भाई ये H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लेट मी शो यू क्लियरली। अब आप ध्यान से देखना क्या मैजिक होने जा रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन पे H प्लस ने अटैक किया, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, बिकॉज प्लस कहीं ना कहीं तो जाना था। तो ऑक्सीजन पे अटैक हुआ, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा था H प्लस को। अब ऑक्सीजन के नॉट होल्ड प्लस, बता सकते हो क्यों? Why? Because Odd electron species. it is electronegative, highly electronegative, second most electronegative। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होल्ड नहीं कर सकते? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। इमीडिएट H2O ब्रेक हो जाता है और साथ में बॉन्ड पेयर लेके जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बताओ इसका भी रिजल्ट क्या निकला? सेम आया। सेम कार्बोकेटायन। कैन यू सी? ये एल्कोहल भी वही कार्बोकेटायन दे रहा है, ये एल्कीन भी वही कार्बोकेटायन दे रहा है। और अगर मैंने ये एल्काइल हैलाइड लिखा होता तो ये भी वही कार्बोकेटायन देता AlCl3 की प्रेजेंस में। राइटिंग आप मैनेज कर लेना, मैं नोट्स आपको बेस्ट दे रहा हूं। Can you see? Same carbocation you are getting, and every time your product will be this with benzene. Is it clear? ये खास बात है कि एक रिएक्शन के थ्रू तुमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब वो एल्कोहल के, अब सोचिए इसमें ये एल्कोहल का रिएक्शन भी कवर हो गया तुम्हारे लिए, एल्कीन का भी रिएक्शन एक कवर हो गया। Getting this idea? So Yes, sir. not only you are covering one benzene reaction, covering reaction of alkene, you are covering reaction of alcohol also, you are covering reaction of alkyl halide also. So just copy this part. कुछ confusion हो then you can ask. So वो जो आपने क्रॉस किया वो एज अ माइनर भी फॉर्म ही नहीं होगा ना? नहीं, उसको माइनर तब जब रीअरेंजमेंट से बने। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, या तो चॉइस थी ये बनाए कि वो बनाए। यस। Sir, how will questions be asked from this concept? They will ask direct product. Okay, sir. And it all depends upon the options, what kind of options they may ask, which of the following statements are correct. They may ask, they may write, in the options, the reaction is electrophilic attack on benzene ring. It's true. But those things they can write in the options which we are studying. Okay? Sir, what have you written on top? There I wrote CH3, CCl, that is tertiary butyl chloride. In the presence of AlCl3, you get same carbocation which I have written here. Same carbocation.
And sir, all will be bonded with benzene, right? All will be what? With benzene. Yes, in all the cases, the reactions with benzene only. Oh yes. Should I remove this button? Yes, sir. Now, one more point which perhaps I told you earlier also, reactivity and orientation. Reactivity and orientation. In your, sheet, if you check reactions of benzene, there I gave you a table of different groups for reactivity and orientation. Like if I take an example of OH, OH का जो ये group OH is actually called activating group, activating and ortho para director. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, because of lone pair, it participates in resonance. As a result, electron density of ring increases. Am I clear? Yes. And electron density increases at ortho and para position. So when electrophile attacks, electrophile will attack, at faster rate as compared to a simple benzene. At the same time, now orientation is clear. The electrophile is going to attack at ortho and or para position of OH. Is it clear to everyone? हाँ सर. तो ये बड़ा केयरफुली तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहां पर अटैक होगा, क्यों अटैक होगा, राइट? तो जैसे इवन मैं अगर लिख दूं, एक रिएक्शन लिख दूं CH3 और इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ, ऑल्दो ये इतनी आसान नहीं होती हैं सब रिएक्शंस, बट अगर मैं सिंपल तरीके से सोचूं तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दिस वन प्लस दिस वन. ये मेजर प्रोडक्ट्स होंगे. क्या सबको समझ में आया बेटा कि CH3, why CH3 is attacking at ortho position and para position? Because ये CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. क्या बेटा सबके पास वो शीट है जो मैंने दी थी? उसकी प्रिंट आप निकाल सकते हो, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी एंड यू विल फील मोर कंफर्टेबल. उसमें जाओ. अगर किसी को पेज नंबर मिल रहा हो, नहीं तो मैं एक मिनट चेक करके आई विल टेल यू. 16 पेज नंबर पे. वेरी गुड बेटा. Sir, could you post the Telegram link, sir? मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ था बेटा. No, sir, the link for the Telegram group. Could you put it in the chat, sir? Can somebody forward the link बेटा यहाँ पर? Sir, there's What happened बेटा? Remaining students just check page number 16. Sir, here only we can chat with you, sir, so I won't be able to receive the link. नहीं मैं भी करता हूँ. Okay. बेटा आप अभी कोई करके देख ले. Can somebody forward link of Telegram?
एंड बाकी बच्चे बेटा पेज नंबर 16 पे जाकर देखें, पूरी की पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है, तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, एकदम आसान तरीके से सब लिखा हुआ है उसमें। ज्यादातर केसेस में तो लोन पेयर ही है जिससे ऑर्थोपेरा डायरेक्टर पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। और सामने जो मैंने लिखा है उसको कॉपी कर लो बेटा। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा चॉइस के लिए, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा है, एंड एक ही कंटेनर में दोनों पड़े हुए हैं, एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो बताओ किसको वो प्रिफर करेगा अटैक करना, विच रिंग विल बी अटैक्ड? ये टॉलुइन वाली रिंग है बेंजीन की, और ये नाइट्रोबेंजीन है। बताइए विच रिंग विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, विच रिंग इज प्रिफर्ड? CH. Yes, because CH3 is an activating group. ये एक्टिवेटिंग है और NO2 is deactivating. ये सब रेजोनेंस के थ्रू बता सकते हैं। NO2 is withdrawing group, it will decrease the electron density. CH3 is releasing group, it will increase the electron density. And in the list also I gave all that groups detail. So from there also you can see. So it's very easy to answer. इसको आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनता है इसमें। So, यस बेटा। so उसी पेज पर उसके ऊपर एक प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और एनर्जी का एक ग्राफ है हाँ हाँ बिल्कुल सही है। विद अल्फा कॉम्प्लेक्स। so वो हाँ अल्फा नहीं, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, वो अल्फा गलती से लिख गया। अच्छा, मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ एक ये इसी के लिए तो ग्राफ है। Yes, इंटरमीडिएट sir. देखो, whenever reaction takes place in 2 steps, graph will be like this. Whenever reaction takes place in 3 steps, graph will be like this. तो ये एकदम रट लेना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 4 steps, okay, sir. 2 steps, 3 Probability distribution. this is energy diagram. All these are energy diagrams. It all depends. Reaction is taking place in how many steps. Let us say 2 steps like this. If reaction takes place in 3 steps, like here only, if intermediate undergoes rearrangement, तो वो बदल जाएगा। बट यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए हम यही वाला लेंगे, ये वाला। तो ये ठीक है। दोनों बैक टू द सेम पॉइंट। ये ओरिएंटेशन सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। Those who are not having the sheet, वो उसमें ये लिंक ज्वाइन करके दे कैन आस्क फॉर द शीट, उसमें कोई ना कोई फॉरवर्ड कर देगा बेटा, ठीक है। अब इसी का डिफिकल्ट देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। गाइस पहली चीज, इधर बेंजीन रिंग है और इधर HNO3 H2SO4 है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? 5 रिएक्शंस को देखकर बताओ, 5 में से कौन सी रिएक्शन के लिए यूज करते हैं? सल्फोनेशन। शट अप। क्लियरली मैंने इसको समझाया था कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद H2SO4। HNO3 हाँ सॉरी nitration. And what you are going to attach in case of nitration? NO2. NO2. Now question arises, which ring? This ring or this ring? So just focus on the first atom directly connected. Here it is oxygen. क्या लगता है ऑक्सीजन इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा कि डीएक्टिवेट कर रहा होगा? एक्टिवेट सर, एक्टिवेट कर रहा होगा। इसको फोकस करो। ये CO है, तुमको क्या लगता है CO किससे मैच करता है? CO CHO से मैच करता है। CO तो ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, यानी ये डीएक्टिवेटेड रिंग है। क्या ये छोटी छोटी चीज समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ सर। और ये एक्टिवेटेड रिंग है, यानी NO2 is going to attack this ring. Now question arises, this is orthopara or meta director? Answer is orthopara director. So this position and this position, 2 positions are activated actually. Now which position will give the major product? Answer है least crowded. नहीं समझ में आया? क्राउडेड इन द सेंस सर एक बार क्राउडेड दोबारा बताते हैं, बहुत सिंपल है। मान लो कि तुम लोकल ट्रेन में मुंबई में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, अंदर जाते हो और अंदर जो है एक
कंपार्टमेंट में एक सीट में जो है 3 लोग बैठे हैं, लेकिन वो 3 बहुत मोटे मोटे लोग हैं, और दूसरी बेंच में जो है दूसरी सीट में 3 लोग बैठे हैं बट वो पतले पतले हैं, और एक फोर्थ को अलाउड है बैठना, तो बताओ किस में बैठोगे तुम? जगह ज्यादा जहाँ पर। जो जिसमें पतले पतले लोग बैठे हुए। इज इट क्लियर? यानी यहां भी लग सकता है, दैट विल ऑल्सो बी अ प्रोडक्ट, बट मेजर प्रोडक्ट के लिए उसकी पहली पसंद क्या होगी? लेस क्राउडेड पोजीशन पे चले जाना। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो मोस्ट, ऐसा नहीं है कि यही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर कहीं बदल भी सकता है, साइंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि टाइम कम है अपने पास, हमें आंसर फटाफट सोचना है, तो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। दैट मीन्स इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दिस वन। सब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुम्हें नहीं मिलेंगे, कॉपी कर लो। Sir, can you just explain how the ring on the right side is deactivated? This ring is deactivated because C double bond is directly connected with benzene. Whenever groups like C double bond OH, C double bond OH, C double bond R, these are all deactivating groups actually. So this from this side point of view, the ring is deactivated. Since oxygen is directly connected with this ring, it is going to donate electrons to oxygen. So this ring will be activated. Yes. Should I remove the page, Buddha? Have you all copied? हाँ सर, डन। आप शीट को अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत सारे रिएक्शंस है जो सिंपल है, सो आई एम नॉट टेकिंग दोज रिएक्शन, वो आप सीधे सीधे पढ़कर समझ लोगे। अब इसमें एल्कीन की रिएक्शंस एग्जाम में अब तो आते हैं बहुत, एल्कीन की रिएक्शंस। एल्कीन की एक रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, और दूसरा रिएक्शन इसकी होती है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंड थर्ड आएगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, एक बहुत पॉपुलर ओजोन जिसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ठीक है, सो मैं फटाफट आपको बताता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन पे आते हैं। हाइड्रोजनेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? रिएक्टिविटी पे। जैसे मैं अगर लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, like if I write CH3CH double bond CH2, like if I write CH3CH like this, so they may ask like reactivity, या फिर they may ask heat of hydrogenation। ये मैंने बताया था क्या आपको उस टाइम पे पहले? नहीं सर। नहीं, चलो कोई नहीं। तो इसमें ये याद रखना है बेटा हाइड्रोजनेशन के लिए कि जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, हाउ डू वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? पुट दैट डबल बॉन्ड इन द बॉक्स, चेक द नेबरिंग कार्बन। इसके पास अल्फा एच कितने हैं बेटा? 6, कैन यू काउंट? इसके पास अल्फा एच कितने हैं? 3। इसीलिए मैं बॉक्स में बंद करा देता हूं, गलती से ऐसा ना हो तुम उसी के हाइड्रोजन काउंट कर लो। इसमें कितने अल्फा एच हैं? 0। तो more alpha H implies more hyperconjugation, which implies more stability, and more stability means they won't react with hydrogen, यानी कि reactivity with या hydrogenation will be less। सबको समझ में आया बेटा? Sir, can I repeat the last line you said? Let me complete this first. Hydrogenation less, which implies less heat will be evolved. Reaction ही नहीं हुई तो heat evolve कैसे होगी? And less heat evolved का मतलब होता है heat of hydrogenation less. HOH मतलब heat of hydrogenation। दोबारा समझा रहा हूं कि whatever alkene they gave you,
You just check number of alpha H. More number of alpha H means more stable alkene. More stable alkene means less will build the reactivity for hydrogenation. Please note, I am just telling you hydrogenation. Other reactions will be decided by with some other concept, but I'm just telling you hydrogenation. And less hydrogenation means less heat will be evolved, and that heat is called heat of hydrogenation. क्या सबको समझ में आया? तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का बेटा? हाइड्रोजनेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबको समझ में आया बेटा? कैसे आ गया? Yes. हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूं बेटा तुम्हारे समझने के लिए. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रख पाओगे? Yes. हाँ सर। इसको कॉपी कर लो पहले. Done. Yes, sir. Sir, I'm not having the sheets and also because in the Telegram link it's not coming in the Telegram channel. Somebody will forward. Just ask for the sheet. Huh? Somebody will Okay, forward. sir. Whatever you want, many lectures are there. You can ask for those things. Somebody will definitely forward. Guys, now come to this point. Electrophilic addition type of reactions. Like ये जितनी भी reactions मैंने sheet में दिए, addition of HCl, HBr, H2O, ये जितनी भी reactions है ना, सारी की सारी reactions जो depend करती है, वो mostly हम लिखते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. किस पे डिपेंड करेगी बेटा? मोस्टली इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. जैसे मैं अगर लिख कर दूं आपको, एक एल्कीन में देता हूं ये, एक एल्कीन में देता हूं ये, और एक एल्कीन में देता हूं ये, क्या तुम्हें लगता है कि इन तीनों में से कौन सबसे अच्छा कार्बोकैटायन बना सकता है? बताइए बेटा. सबसे अच्छा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट किसमें बन सकता है? स्टेबल. और एक हिंट ये कि जिसमें टर्शरी कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी है वो ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने की वो सेकेंड अच्छा होगा, और प्राइमरी
लास्ट में आएगा। बताइए किसका कौन कार्बोकेटाइन सबसे अच्छा दे सकता है आउट ऑफ 3? जस्ट गेस। एनीवन? पहला वाला। फर्स्ट पहला वन। वाला है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन जब ये बनाएगा तो आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, इस वाले में ये बनेगा, और इस वाले में ये। अगर सब में मान लो H+ ने अटैक कर दिया, सब ने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो इस तरह के कार्बोकेटाइन्स बन रहे हैं सब में। सो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बस ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट implies more reactivity। ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जितना भी है एल्कीन का, सब में यही कॉन्सेप्ट है। उसका एग्जांपल ये है। एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। So tertiary carbocation is more stable than secondary, and that is more stable More than stable than primary. primary, yes बेटा। Okay, sir. ऑल्दो कॉन्सेप्ट वाइज हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट वो रटने के लिए फिर हम ऐसा याद करना शुरू कर देते हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दैट हाइपर कॉन्जुगेशन। Then beta, should I remove this? So Yes, sir. Now come to this ओजोन लिसिस वाला पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लिसिस का रिएक्शन, और मैंने वैसे लिख कर दिया हुआ है शीट में, बट मैं एक मैजिकल चीज बताता हूँ जिससे आपको इमीडिएट आंसर आ जाएगा। वो कई स्टाइल से क्वेश्चन पूछेगा कि कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन गिव्स बी एंड सी, इस तरह से कंपाउंड लिख कर देगा लैंग्वेज, ठीक है, एंड बोलेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो वो आपको ऑप्शंस में मिलेगा एंड यू कैन इजीली फाइंड आंसर। बड़ा सिंपल है। पहली चीज है कि दो टाइप की ओजोनलिसिस होते हैं। एक हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिसमें जो है पहले ओजोन के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, सॉल्वेंट वगैरह हो सकता है CH2 Cl2, इससे कोई लेना देना नहीं। एंड सेकेंड स्टेज होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस उसमें H2O और कॉमा जिंक होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जिंक रहता है, कभी कभी कुछ और डाल देते हैं। दूसरा रहता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इसमें क्या होता है, पहला स्टेज इज सेम O3, दूसरा स्टेज होता है उसमें जिंक मिसिंग है, ठीक, H2O डाल देंगे या फिर H2O2, जिंक इज मिसिंग, ठीक। डिफरेंस समझ में आया बेटा? दोनों केसेस में
एक में पहले हम लिखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म, दूसरे वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड और या फिर एंड CO2, यहां पर भी और एंड CO2। ठीक, अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ये दिख रहा है ऐसा, यहां पर लिख दिया मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब मैं वो मैजिकल चीज आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। करना क्या है आपको, बस इसको तोड़ देना है, तोड़ दिया और बस एक ओ रख दो आंसर। समझ में आया बेटा? ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स लिखने का स्टाइल। एक्सटेंड द डबल बॉन्ड, ब्रेक द डबल बॉन्ड, पुट ON in between plus charge. That means plus charge क्या होता है, प्लस साइन है, वो एडिशन के लिए चार्ज में बोल दिया। So two products you are getting by reductive ozonolysis. This is the way we write answer. क्या सब बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। दूसरा, अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, here also you get carboxylic acid, here also you get carboxylic acid। तो मैं अभी एग्जांपल लिखकर आपको दिखाता हूं। जैसे अब याद करो, मैं ऐसा बोलता हूं 99% आंसर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 99 कुछ नहीं दिया तो ऊपर वाला मान लेंगे। समझ में आया सब बेटा? अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, खाली ओजोनोलिसिस बोलता है, देन फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे हम लोग। अब आप ध्यान से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ओजोन डाला गया, फिर H2O, जिंक। करना क्या है बेटा, जस्ट ब्रेक दिस वन। व्हाट विल बी योर आंसर, CH3 CHO और इधर HCHO। समझ में आया सबको? कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है, ब्रेक कर देना है। क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 CaO यानी एसीटोन मिला, और उधर फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, एसीटोन, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। मैं तो ऐसे ही नाम लिख दिया कि आपको रिकॉल कर लें, आप जो हमने ना IUPAC में पढ़ा होगा। ये इस तरह से आंसर्स लिखने का स्टाइल है। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब देखो एक और दूसरी चीज कि मान लीजिए कि इसमें ऐसा दिया हुआ है, ये इसमें वही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्या करोगे बेटा, व्हाट विल यू डू, जस्ट ब्रेक दिस। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ CHO यहाँ CHO, कुछ और नहीं करना है, C डबल बॉन्ड और C डबल, तो इसका आंसर क्या होगा, CH2 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 CH2, 4 CH2 है, CH2 होल 4, और इधर C डबल बॉन्ड H, इधर C डबल बॉन्ड H, यानी यहाँ सिंगल प्रोडक्ट मिला बिकॉज ये साइक्लिक था। इज इट क्लियर? हाँ सर। ये ध्यान रखना। और सारे एग्जाम्पल्स में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये इंटरमीडिएट होता है, इसको अगर तुम याद रख पाओगे तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओजोनाइड, दिस इज द इंटरमीडिएट। बट इतने कम टाइम में इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। यू कैन राइट दिस, बट most of the time they will talk about products, they will talk about reactant with the help of products। तो कैसे, मान लीजिए उल्टा करना हो मुझे, उल्टा इन द सेंस कि उसने दिया A गिविंग B एंड C, और B और C के स्ट्रक्चर्स दे दिए, will you be able to write A, will you be able to write the structure of alkene? Yes, just merge the two and put a double bond। is it clear? यस सर। इसको कॉपी कर लो बेटा। सर प्रीवियस पेज पहले कॉपी करना है। ओके।
सर वो हाइड्रोलाइसिस लिखा है ना, सेकंड रिडक्टिव में Yes, सेकंड. yes, yes. और आपको अगर लेक्चर एग्जाम से पहले कोई डाउट्स वगैरह आते हैं ना, तो यू कैन पोस्ट इन दैट टेलीग्राम ग्रुप. सो whenever I get time, I will answer. यस सर. Shall I change the page? Yes, sir. So that ozone intermediate is formed in all of the reductive Yeah, ozone not only reductive, even in oxidative ozone intermediate is same. The second step Okay, is sir. different. Okay, sir. So first step is basically the same. Second step Yes. is Second step, in one case zinc is present, in another case zinc is not present. Zinc is actually controlling the oxidation process. okay, sir. Shall I remove this? Yes sir. Yes, sir. Let me tell you about oxidative ozonolysis as well as oxidation with the hot KMnO4. Hot KMnO4 का जो आंसर होगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का आंसर सेम होगा, ये याद रखना. बट याद रखना अगर कुछ भी नहीं दिया है देन ओजोनलिसिस विल बी कंसीडर्ड एज रिडक्टिव ओजोनलिसिस फॉर एल्कीन. ठीक, अब मैं आपको बताता हूं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 CH2 CH3 double bond CH2. Let me tell you, just focus on the carbon of double bond. Just focus on the carbon of double bond. Definitely you need to break this. Just focus on the carbon. If carbon has 1H,
it will be converted into COH. If carbon has 2H, it will be converted into CO2 and H2. If carbon has no H, it will be converted into ketone, C11. ये एकदम मैं आपको तुम सिंपल, इससे आसान नहीं कोई बता सकता बेटा. आप जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये बताइए इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास कितने एच है बेटा? 1. दैट मीन्स ये कौन से रूल में आया? फर्स्ट वाले में. तो इसका आंसर क्या होगा? CH3COOH. इसके बगल वाले डबल बॉन्ड कार्बन के पास कितने एच है बेटा? 2. दैट मीन्स इसमें फॉल किया, आंसर होगा CO2 plus H2. इज इट क्लियर बेटा? सबको समझ में आया कैसे प्रोडक्ट लिखना है? तो इसको फोकस करो. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स दिस कार्बन हैज? 0. 0. दैट मीन्स केवल C डबल बॉन्ड प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम दिस डबल बॉन्ड कार्बन हैज? 1. तो इसका एसिड बना दो CH3COH, 2 कार्बन का एसिड. ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का प्रोडक्ट. थर्ड वाले में बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एनीबॉडी कैन यू गेस? बताइए बेटा. C डबल बॉन्ड हो, कीटोन लेफ्ट वाला. Ketone and CO2 and H2. यस, पहला प्रोडक्ट होगा ब्यूटेनोन और दूसरा होगा CO2 and H2. कितना इजी तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं. हॉट केमिनोफोर का भी आंसर यही है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का आंसर भी यही है. इसको कॉपी कर दो बेटा. Sir, how do you identify oxidative and reductive अगर कुछ दिया नहीं है तो? नो दे विल राइट ना, जिंक और नॉट. मैं बोला तो ये जिंक इज नॉट प्रेजेंट हियर. either they will give oxidative, they will write oxidative ozonolysis reductive. if they are not given, मैंने बोला ना, या तो reagents देगा या नाम लिख कर देगा. if nothing पहला is reagent mentioned, same. then you consider reductive. लेकिन सर पहला रिएजेंट सेम है इसलिए पूछ रहा था मैं. हाँ तो ये सेम, इससे कोई मतलब नहीं ना. सेकंड स्टेज से मतलब, ओवरऑल रिएक्शन को रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव बोलते हैं. अच्छा, ओके. ठीक है. फर्स्ट स्टेज विल नॉट टेल यू कि ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव. अच्छा, वो स्टेजेस के लिए मुझे लगा ओवरऑल था वो. Somebody saying something? Should I remove this page? No, sir, I don't. And I'm repeating, whatever reactions I have given you in the sheet, you must go through the reactions. Definitely, अब मैंने जितना जरूरी वो सब लिख कर दिया है, उससे बाहर कभी कुछ नहीं पूछेगा. मैंने एक्स्ट्रा ही आपको दिया हुआ है. स्टिल मैंने ये भी लिख कर दिया था कि अगर टाइम कम हो तो कौन कौन सी रिएक्शंस पे फोकस करें. Sir, how many sheets you had sent earlier, sir? I had sent 3-4 sheets of assignments and one of that theory part. Okay, sir. बाकी मैं क्लास में लिखाता था. Should I remove this page? एक और मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा, वो भी आपको एग्जाम में आने के चांसेस है. ये जिसको बोलते हैं एल्काइल बेंजीन. इसका एक पॉपुलर रिएक्शन है हॉट KMnO4 के साथ, और इसका आंसर है एवरी टाइम बेंजोइक एसिड. मींस इट डज नॉट मैटर
How big is R? Carbon which is directly connected with benzene gets converted into COOH. Gets converted into COH. Carbon must have at least one H, otherwise no reaction. Let me ask you, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सब में हॉट केमिकल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? What will be answer? First case. Carbon which is directly connected gets converted to COH. बाकी चीजें हट जाएंगी. Remaining thing will be removed. Only the carbon which is directly connected will be converted into COH. बाकी सब हट जाएगा. क्या सबको समझ में आया बेटा? बड़ी सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपको बताई, एग्जाम में आती भी रहती है. अब देखो बड़ा एग्जाम्पल में लेता हूं. जस्ट सी, एक बड़ा डिजाइन वाला कंपाउंड हो गया और इसमें डाल दिया गया हॉट केमिनोफोर. जस्ट फोकस ऑन द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड. क्या इस कार्बन के पास H अवेलेबल है? एटलीस्ट वन H. यस. इधर देखो, क्या इसके पास एक H है? यस. बाकी चीजें हटा दो. जस्ट फोकस ऑन द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विल बी कन्वर्टेड इनटू COH. इसका आंसर ये है. इसको थैलिक एसिड बोलते हैं. ऑल्दो नाम से कोई लेना देना नहीं है. जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट. एनी कंफ्यूजन बेटा? इसको कॉपी कर दो. इसको कॉपी करो एंड देन यू कैन लीव एंड you must read the reactions which I gave in the sheet, and if you find any difficulty you can ask. अगर मुझे लगेगा तो मैं बोलूंगा कि आप छोड़ दो इसको, ये उतना important नहीं है, but you must ask those things. ये नहीं कि जबरदस्ती आप परेशान रहे. आप उसी ग्रुप में just you ask कि मुझे क्या करना है इस रिएक्शन के रिगार्ड. Yes, sir. So, Yes, बेटा. sir, when you said that बाकी products हट जाएंगे, what does it mean? Like they are not significant for the question, or They are not significant for the question. Those will be Okay. removed as CO2 and H2. The main Okay, sir. product is your benzoic acid. okay, sir. Those who have copied, they can leave. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.